నమస్తే, వెల్కమ్ టు నేషనలిస్ట్ హబ్. ఈరోజు ఒక విశిష్టమైన అతిథి నేషనలిస్ట్ హబ్ స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారి గురించి ముందు చెప్పాలి అనంటే 1967 నవంబర్ నెలలో అప్పుడు గోరక్ష కోసమని గోరక్ష చేయాలనే ఉద్దేశంతో చాలా మంది సాధు సంతులు ఢిల్లీలో నిరసన ఆందోళన బాట పట్టినప్పుడు వాళ్ళపైన హుకుం చెలాయించి నిజానికి వాళ్ళని అణచివేసే ఒక ప్రయత్నం చేసింది. అందులో చాలా మంది సాధువులపైన లాఠీచార్జ్ చేయడం, కొంతమంది మరణించడము. అప్పుడు ఇందిరాగాంధీ ప్రధానిగా ఉన్న సమయం అది. సో ఆ టైంలో జరిగింది. అప్పుడు వారణాసికి చెందినటువంటి కరపత్రి స్వామీజీ, ఆయన ఈ ఆందోళనలో పాల్గొన్నటువంటి వ్యక్తే. సో వారు గోవుల్ని రక్షించాలంటే సాధు సంతులపైనే దాడి చేస్తారా అని కరపత్రి స్వామీజీ శపించారు ఇందిరాగాంధీని. సో అది నిజంగా అందరికీ, సాధు లోకానికి, సాధు సంతులందరికీ కూడా, ముఖ్యంగా సనాతన ధర్మాన్ని పరిరక్షించాలనుకునే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా సాధు సంతులపై వాళ్ళ రక్తమోడే విధంగా లాఠీచార్జ్ జరగడం అనేది భారతదేశ చరిత్రలోనే అది నిజంగా ఒక మాయని మచ్చగానే ఉండిపోయింది. అటువంటి ఆందోళనలో కీలకమైన భూమిక వహించినటువంటి వ్యక్తి. ఆదిశంకరాచార్యుల తర్వాత అనేక పీఠాధిపతులు, మఠాధిపతులు, యోగీశ్వరుల కోవలోనే వారి లాగానే ఒక అద్భుతమైనటువంటి సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ కోసం పనిచేసినటువంటి కరపత్రి స్వామీజీ శిష్యుల్లో ఒకరు. అండ్ వారి ఆశ్రమం నుంచే వచ్చినటువంటి మరొక స్వామీజీ ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్లో, ఇక్కడ సికింద్రాబాద్లోని పద్మారావు నగర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి స్కందగిరి ఆలయంలో ఆగస్టు 11వ తేదీ నుంచి 13వ తేదీ మధ్య కోటి కుంకుమార్చన మహాయజ్ఞం నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. అండ్ ఇది భారతీయ సనాతన ధర్మాన్ని పరిరక్షించాలనే సంకల్పము, అండ్ దేశభక్తిని పెంపొందించే సంకల్పము, అండ్ దేశం బాగుండాలనే ఒక అద్భుతమైనటువంటి సంకల్పంతో ఈ కార్యక్రమం జరగబోతోంది. అండ్ చాలామంది, పెద్ద ఎత్తున వేలాది మంది మహిళలు అందులో పాల్గొంటూ ఉన్నారు. ఈ సందర్భంలో ఈ మహాయజ్ఞం గురించి, లేదా ఈ స్కందగిరి ఆలయాన్ని ఎక్కడే ఎందుకు నిర్వహించాలనుకుంటున్నారు అనే అంశం గురించి, అండ్ ఈ యజ్ఞం గురించి, లక్ష్యం గురించి, సంకల్పం గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాము. ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు కరపత్రి స్వామీజీ శిష్యులు అండ్ స్వామి అభిషేక్ బ్రహ్మచారి. ప్రస్తుతం ఇక్కడే మన నేషనలిస్ట్ హబ్ స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడదాం. नमस्ते स्वामी जी. स्वामी जी प्रणाम. मेरा सौभाग्य है कि आपसे बात करना है. मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन प्लीज़ आई ट्राई टू कम्युनिकेट टू द ऑडियंस एज ए मीडियम सर. फर्स्ट स्वामी जी, ये अगस्त 11 से अगस्त 13 तक जो कुंकुमार्चना के लिए आप संकल्प लिया है स्कंदगिरी टेम्पल में करने के लिए, इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, संकल्प क्या है? स्वामी करपात्री जी महाराज से हम लोग जुड़े हुए लोग हैं. आदि शंकराचार्य के परंपराओं का पालन करने का प्रयास करते हैं. किसी भी विषय को शुरू करने का उद्देश्य विश्व कल्याण होता है. स्वामी करपात्री जी महाराज ने जब अपना मिशन शुरू किया तो उसका एक मुखपत्र रखा, चाहे घोषणा उद्घोष रखा, जिसमें उन्होंने रखा कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, गौ माता की जय हो. 4-5 उद्देश्य उन्होंने देश के सामने प्रस्तुत किया कि धर्म शासित विश्व में रहना है, न कि अधर्म शासित विश्व में रहना है. तो धर्म की परिभाषा को परिभाषित करने लगे. यज्ञ आगादि होते हैं, भगवती की पूजा होती है, परंतु उसके साथ साथ सत्संग, प्रवचन और तमाम ज्वलंत विषयों पर चर्चा भी करने का प्रयास किया जा सकता है और किया जाता है, जो समसामयिक होता है. कुंभ का उद्देश्य गंगा स्नान और गंगा यमुना सरस्वती के मध्य में स्नान ही नहीं होता है, अपितु तमाम पंडाल जो होते हैं. अभी 2025 में कुंभ लगेगा, आपको भी हम वहाँ बुलाएंगे, आप भी आएंगे कुंभ में. तो उद्देश्य तो गंगा स्नान होता है, भगवती का दर्शन होता है, परंतु वहाँ मंथन होता है. विभिन्न विषयों पर एक विचार और विचारधारा को प्रस्तुत किया जाता है, जो धर्म शासित होता है, शास्त्र अनुकूल और सनातन के सापेक्ष होके विश्व पटल पर सनातन धर्म की स्थापना और सनातन के प्रति समर्पण की भावना को जागृत करना होता है. और उसी के उद्देश्य के लिए यज्ञ आगादि कुंभ आदि के प्रायोजनों में लोग भाग लेते हैं. ओके स्वामी जी, आप इससे पहले चेन्नई में, कांचीपुरम में, न्यू दिल्ली में, वाराणसी में, मुंबई में, प्रयागराज में, गुवाहाटी में, कोलकाता में, जयपुर में ऐसा ही आप महायज्ञ किया है. अभी सिकंदराबाद स्कंदगिरी मंदिर में आप क्यों करना चाहते हैं, इसका कुछ विशेष है क्या? हमारे गुरु जी थे जो स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य थे, स्वामी वेदांती जी महाराज. उनकी 100वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं. तो हमारा उद्देश्य है कि
देश के विभिन्न प्रदेशों में जाके स्वामी करपात्री जी महाराज के उत्तराधिकारी श्री स्वामी वेदांती जी महाराज के जन्मशती जयंती को मनाने का प्रयास करेंगे और विभिन्न प्रदेशों में जाके स्वामी करपात्री जी महाराज के बारे में हम लोग प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, सनातन और गोरक्षा का अलख जगाने का काम करेंगे। इसलिए जो यहाँ के भाग्यनगर का धार्मिक प्रदेश है, हमको विडंबना तब हुई कि तेलंगाना और आंध्र के जैसे आस्तिक प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति जाके संसद में शपथ लेते हैं और वहां बोलते हैं कि जय फिलिस्तीन, जबकि दोनों का कोई समन्वय नहीं होता है। सनातन धर्म की भाषा है और फिलिस्तीन का कोई समन्वय नहीं होता। मैंने बिना मेल का जो संस्कृति का प्रोत्साहन करना है ये संसद में दिया गया। तो हमारे मन में हुआ कि नहीं, हम चलेंगे और हैदराबाद के क्षेत्रों में जाके हम बताएंगे कि जय विश्वनाथ होता है, जय भारत होता है, जय सरस्वती, जय काली, जय दुर्गा होता है, जय फिलिस्तीन का कहीं हमारे शास्त्रों में अध्याय ही नहीं है। हम सनातन का समर्थन करते हैं, हम सत्य का जय करते हैं और गोरक्षा की बात करते हैं और सनातन धर्म की स्थापना की बात करते हैं। इस उद्देश्य से हम लोग अभी यहाँ आए हुए हैं। हम लोग भगवती की आराधना के साथ साथ विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा करके लोगों में एक जागरूकता फैलाने का काम करेंगे कि जो सनातन सापेक्ष हो, और ये अपील करेंगे कि ऐसे लोगों को सनातन संविधान में विहित अधिकार के अंतर्गत रह के इनका बहिष्कार करना चाहिए कि जो पुनः उनको ये अवसर नहीं मिले कि जाके संसद में जय फिलिस्तीन कहे। स्वामी जी, इस चेन्नई में, तमिलनाडु में भी वैसे ही एक डीएमके पार्टी का लीडर जो अभी सीएम है ना, उनका बेटा, उन्हें बता रहे कि आप सुना हुआ शायद, वो बता रहे कि सनातन धर्म एक वायरस की जैसा है, विनाश करना है वो, वैसा ही एक भाषण में उन्हें उल्लेख किया है। इससे बारे में आप क्या बताते? बातल भूत विवस्मत वारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, तिनकृत महामोह मद पाना, तिनकर कहा सुनई नहीं काना। जो दारू पिए होते हैं, शराबी लोग होते हैं, वो कहीं भी जाके कुछ भी बोलना शुरू करते हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, परंतु आपके बारे में बिना जाने आपको गाली देना शुरू करे कि नहीं ये तो ये है, आपके बारे में अनर्गल प्रलाप। जो सनातन धर्म के बारे में नहीं जानता है उस सनातन की बात कैसे करेगा? आपको एक छोटी घटना बताते हैं। जब चीन की लड़ाई शुरू हो गई थी, भारत वहाँ पोह की स्थिति में था और नेहरू जी घोर नास्तिकवाद और सेकुलर स्टेट के हिमायती थे। उस समय उनको कोई ये बात सूझ नहीं रही थी कि हम क्या बोलें, संसद में क्या बोले कि भारत हमारा अंग है, शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण है क्या? ऐसा कुछ था। तो उस समय स्वामी करपात्री जी महाराज काशी में विराजमान थे। विशेष विमान द्वारा वहाँ भारत सरकार के कुछ मिनिस्टर आए, नेहरू जी द्वारा भेजा हुआ, और उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने कहा है कि स्वामी करपात्री जी महाराज शास्त्र निष्ठ महात्मा है, उनके पास जरूर कुछ ऐसा श्लोक चाहे स्लोगन होगा जिसको बोला जा सकता है। तो महाराज जी ने कहा कि वो तो नास्तिकता के पोषक हैं, शास्त्र में विश्वास नहीं रखते हैं। फिर भी लोगों ने कहा कि देश की बात है, महाराज जी ने कहा कि देश की समस्या का बात है, तो हम इस पर प्रकाश डालेंगे। तो 2 श्लोक स्वामी जी ने अपने शास्त्रों से खोज के दिया, चाहे उनको कंठ विद्या थी कि हिमालय समारंभ जावेदेन्दु सरोवर तद्देव निर्मिता देश हिंदुस्तान प्रजक्षते, ऐसे करके 2 श्लोक उन्होंने बोला, जिसको कंठ करके दूसरे दिन संसद में नेहरू जी ने भाषण दिया। तो जो घोर नास्तिकवाद को मानते हैं और जरूरत पड़ता है तो शास्त्र के शरण में चले जाते हैं, तो सनातन धर्म को समझना नहीं, वो बस अपने आप को ये प्रस्तुत करना कि सनातन के बारे में तो एक बात बोल दी और पूरे देश में हल्ला मच गया। तो अपने आप को केंद्र में रखने के लिए भी वो सनातन का सहयोग लेते हैं और सनातन की शरण में जाते हैं। उदयनगिरी मारन, क्या नाम है उसका, उसको तो कोई नहीं जानता, परंतु सनातन का नाम लिया तो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सब लोग जान गए उसको। तो विरोध से भी या सहयोग से, जैसे हम रामायण में 2 पात्र की चर्चा सुनते हैं, तो राम के विरोध के कारण रावण को जाना गया। ऐसा नहीं है कि रावण का कोई निज का व्यक्तित्व हो, बस उसका एक ही व्यक्तित्व था कि राम से उन्होंने विरोध किया। तो सनातन के विरोध के कारण उनकी उपलब्धि है, यही उनका एक उद्देश्य है। इसके अलावा वो कुछ सनातन का कर नहीं सकते हैं। हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं, सनातन पर विश्वास करने वाले लोग हैं, और सनातन के बिना वह भी नहीं है। जिस दिन सनातन नहीं रहेगा उस दिन सनातन के विरोध करने वाले भी नहीं रहेंगे। और जब तक वो सनातन के शरण में नहीं आएंगे तब तक उनका कल्याण होने वाला नहीं है। घोर नास्तिकवाद के प्रतीक भी अंत में सनातन के शरण में आ जाते हैं।
करेक्ट स्वामी जी करपत्री महाराज जी उस टाइम पे 1966 में जो गोरक्षा के लिए आंदोलन किया है, उस टाइम पे करपत्री महाराज जी ने शाप किया है वो इंदिरा गांधी के लिए। सो अभी इंदिरा गांधी का पोते क्या है बोलते हैं उनको, अभी उनका ग्रैंडसन है अभी राहुल गांधी, जो बता रहे कि अयोध्या में आपको हरा दिया, ऐसा पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो हो रहा है, लेकिन उनका मानना ये है कि सनातन धर्म के बारे में वो उनका अलायंस पार्टनर जो बताते हैं ना, उनको कंडेम भी नहीं करते हैं उन्हें। सो ऐसा माहौल है आजकल 2024 इलेक्शंस के बाद। अब क्या देख रहे हैं, सनातन धर्म को हटाने वालों को शक्ति मिल रही क्या? अभी हटाने के लिए सोचने वाले को उनको शक्ति मिल रही क्या? उनके बारे में आपका देखिए उद्देश्य क्या है? दोनों सोचने का पहलू अलग होता है। आपका जो ग्लास है पूरा भरा नहीं है तो हम कहेंगे कि खाली है और कोई कहेगा भरेगा। हम तो ये कह रहे थे कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार ना आना हो और राम मंदिर और सनातन धर्म के सहयोग हेतु फिर से प्रधानमंत्री बन गए, ये हम मानते हैं। ऐसा नहीं है कि देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाना, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बन जाना, ये तो एक कोई विडंबना से कम नहीं है। नेहरू जी 2 बार चुनाव जीते, सन 52 और 2 बार, एक बार तो 52 एंड 57 62 हाँ 3 बार चुनाव प्रधानमंत्री बने। तो उसके बाद सीधा माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। तो हम ये मानते हैं कि हो सकता है कि उनकी सीटें और कम आती, परंतु राम मंदिर का जो जस उनके माथे पर चढ़ा, भगवान राम की कृपा जो हुई कि पुनः सरकार में वापसी हो गई। सीटें कम होना बेसी होना ये अलग विषय होता है। यह तो हम नहीं कह रहे कि वो 400 आ गए हैं कि उनकी सरकार बन गई हो। प्रधानमंत्री तो वही हैं, देश का नेतृत्व हमारे भी हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, इवन राहुल गांधी और जो भी विपक्ष के नेता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हम सहमत हो असहमत हो, सहमत हो असहमत हो, देश के जो वोट देता है तो पूरा जनता तो वोट दे नहीं देती है सरकार को, परंतु जो वोट नहीं देता है उसका भी प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री तो आज मोदी है। तो हम ये मानते हैं कि भगवान राम की कृपा से पुनः प्रधानमंत्री के रूप में वो प्रतिष्ठित हुए हैं, ये कम बात नहीं है। और उसी स्टाइल में काम कर रहे हैं। और यही राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में शिव जी का इमेज को दिखा के उधर वो त्रिशूल है ना, वो अहिंसा का सूचक है, ऐसा बोल रहे हैं ना, उनको आप कैसे देखते हैं? हम लोग एक बात कहते हैं जो हमारे भोजपुरी क्षेत्र में बोला जाता है, सिखावल बुद्धि 2.5 घड़ी। माने इसका मतलब है कि अगर हम आपको कुछ रटा दें किसी विषय पर, हम आपको ले जाएंगे कि तोता आएगा वो जो नहीं कहता है तो मान लीजिए आपको हम पढ़ा दिए, उससे आगे और उससे पीछे पूछा जाएगा तो आपको तो ज्ञान नहीं है। बस आप देखते हैं कि त्रिशूल लिए हैं, अभय मुद्रा लिए हैं, 2 याद है। इसके अलावा वो अभय मुद्रा कब त्यागते हैं, कब वो त्रिपुरासुर का वध करते हैं, उनके अलावा भी तो उनकी एक भूमिका होती है। कब शिव जी तांडव करते हैं, कब सती को लेकर प्रलाप करते हैं। तो शिव के स्वरूप का वर्णन अगर राहुल गांधी करने लगे, जिसका वर्णन जोगी महर्षि मुनि भी नेति नेति इति वेद पुकारा, बड़े बड़े महात्मा जोगी जहाँ जाके चुप हो जाते हैं, जो निराकार शिव में विलीन हो जाते हैं, का विष्णु और ब्रह्मा भी उस तथ्य और ज्योतिपुंज को प्राप्त नहीं किया, उनकी व्याख्या अब राहुल गांधी करने लगे, जो कि स्वयं वो क्या मटन और चिकन बना के दिखाते हो। तो फिर दूसरे की आवश्यकता तो हो नहीं। लंगोटी पहन के जो कंदराओं में साधु घूमते हैं, उनकी क्या आवश्यकता है जब उन्हीं की बात हम लोग सुनने लगे? तो उनका बात तो इसी तरह अनर्गल बोलते रहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। स्वामी जी, उत्तर भारत में तो बहुत सारे साधु संत आपके जैसे स्वामी जी लोग बहुत सोशल इश्यूज को, पॉलिटिकल इश्यूज को आप डायरेक्टली आप बातचीत करते हैं, उसके बारे में जानकारी भी देते हैं जनता को और भक्तजनों को। लेकिन दक्षिण में थोड़ा अलग है। दक्षिण में थोड़ा ये सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज रहे तो ज्यादातर साधु संतु లేదా साधु लोग या वो जो पीठाधिपति रहते हैं ना, वो बातचीत नहीं करते, वो संदेश भी नहीं देते। अगर भक्ति और शक्ति दोनों का अंतर क्या है, ये हिंदू शक्ति भी अभी जागृत करना आवश्यकता है कि नहीं? अभी देखिए सर, वो लोग क्या करें तो उनका निजी मत होता है, परंतु हम जिसके फॉलोअर हैं, जिसको मानने वाले, अगर आदि शंकराचार्य कहते हैं कि नहीं जो करना है करो, हम एक जगह मठ में बैठ के भजन करेंगे, चाहे क्वालिटी से बाहर नहीं निकलेंगे, तो आज चारों मठ और चारों शंकराचार्य होते नहीं जिनकी हम लोग पूजा आराधना करते हैं।
तो आदि शंकराचार्य जी निकल के देश के विभिन्न प्रदेशों में जाके, विभिन्न राज्यों में जाके, विभिन्न जगहों पर जाके सनातन धर्म के उत्थान हेतु समसामयिक प्रयत्न किया, समसामयिक लड़ाई लड़ी, समसामयिक राजाओं के हृदय का, राजा सुधनवा के हृदय का शोधन करके सनातन धर्म की स्थापना की। तो राजनीति में जब तक धर्म नियंत्रित राजनीति नहीं होगी तब तक नहीं होगा। आपको हम 2 मिनट में आपकी बात हम आपको उत्तर दे रहे हैं। स्वर्ग में राजा होते थे इंद्र, हमारे स्वामी जी कहते थे, परंतु राजा इंद्र को निर्देशित करने के लिए वहां बृहस्पति के रूप में बैठे होते थे एक साधु, और उनको निर्देश देते थे कि आपको ऐसा करना चाहिए। हो गया। उसके बाद हम लोग देखते थे कि भगवान राम युद्ध करते थे, भगवान राम विश्व विजेता, और भगवान राम के राम राज्य की कल्पना हम और आप कर रहे हैं। तो भगवान राम को भी निर्देशित करने के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र साधु रूप में बैठे रहते थे। वो कहते कि आवते ही देह दिखाई तब को ताड़का क्रोध करिदाई, कही बान प्राण हरिलिन्हा, दीन जानते ही निज पद निन्हा। उन्होंने बताया कि ताड़का इसको मारो, ये विधर्मी है। भगवान राम को निर्देशित एक साधु कर रहा है। अगर वो भी चाहते तो कहते कि क्या हो रहा है होने दो, हम तो भजन करेंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। परंतु वशिष्ठ ने राम को एक मार्गदर्शन दिया। उसके बाद भगवान युधिष्ठिर के, श्री कृष्ण और युधिष्ठिर को देखते हैं, वो भी सांदीपनी और महर्षि धौम्य के निर्देश में युधिष्ठिर ने पुनर्धर्म की स्थापना की। युधिष्ठिर के गुरु महर्षि धौम्य थे, उन्होंने की। कलयुग में सामर्थ्य गुरु रामदास जी ने बड़ी सुंदर शिष्य की खोज की और वो बताया, जिसको हम लोग महाराज शिवाजी कहते थे। चाणक्य के निर्देश में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना की। तो चाणक्य तो कोई गृहस्थ नहीं थे, साधु थे। उसके बाद आप देख लीजिए सन 47 से पहले हम लोग देखते थे कि महात्मा गांधी एक साधु वेश में थे और राजनीति को निर्देशित करते थे। चाहते तो अपने प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, लोग उनको मानता भी, परंतु राजनीति को निर्देशित किया उन्होंने। अब लोग कहते हैं सेकुलर स्टेट हो गया, साधुओं को राजनीति में नहीं आना है। साधुओं को ही राजनीति में आके दिशा निर्देश देना होगा कि हमारी आवश्यकता, भगवान का पूजा तो जरूरी है, नेसेसरी है, परंतु राजनीति भी धर्म का अंग है। धर्म नियंत्रित राजनीति होनी चाहिए जो कि राष्ट्र का मार्गदर्शन करे। वो किसी दल से वो न जुड़े। अच्छा, करेक्ट। किसी दल से न जुड़े, परंतु अगर लगे कि कांग्रेस खराब है तो उसको भी प्रतिकार करे, और लगे कि भाजपा गलती करे तो उसको भी सुझाव अपना देना चाहिए। तो स्वामी करपात्री जी महाराज ने यही किया। जो देश की समसामयिक समस्या थी, उसमें उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया और रखने का प्रयास किया। रामराज परिषद की भी स्थापना उन्होंने की, कितने सांसद विधायक जीते भी। और जहाँ तक श्राप की बात है, तो उस समय हम उपलब्ध नहीं थे उस जगह पर, तो ये तो गोपनीय बातें होती है, परंतु गोपनीय बातें भी प्रकट हो जाती हैं। अगर स्वामी जी ने श्रापित किया है तो उसका परिणाम भी आपको दिखाई दे रहा है। Correct. कहीं ना कहीं मिसेस गांधी से लेके संजय गांधी और राजीव गांधी जी का अंत हुआ, उसको दुनिया देख रही है। तो कहीं ना कहीं ये लोग विधर्मी हैं और धर्म का विरोध करने का प्रतिफल भी गलत होता है, ऐसा हमारा मानना नहीं, आपका भी मानना है। तो धर्म नियंत्रित राजनीति होनी चाहिए, धर्म सापेक्ष राजनीति होनी चाहिए, और धर्म ही दुनिया को निर्देश दे सकता है। जैसा हमने बताया कि स्वामी जी का स्लोगन था, धर्म की जय हो। धर्म का जय हो। तो धर्म के अंतर्गत राजनीति, शिक्षा नीति, अर्थनीति, वाणिज्य नीति, सैन्य नीति, सब कुछ उसके अंतर्गत आता है, उसके कोई अछूता नहीं। और हम ये देखते हैं कि इसी दक्षिण के राज्यों में देखते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से वो बोलते नहीं है, सूचना नहीं देते हैं, परंतु देखते हैं कि अपरोक्ष रूप में नेताओं का जमावड़ा लगा रहता है। हम लोग देखते हैं कर्नाटका जब चुनाव होता है तो हर मठों में जितने वो होते हैं, पॉलिटिकल लोग होते हैं, मठों में वहीं हमको लगता है कि घूमते रह जाते हैं। तो हम अप्रत्यक्ष क्यों रहें? हम समाज में प्रत्यक्ष रूप से अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करें, जो कि समसामयिक हो, दिशा निर्देशित करने वाला हो, और समाज में एक परिवर्तन की धारा बहा सके, जो कि लोग कहे कि नहीं, इन्होंने सही बोला है, इनकी बात को सुनना चाहिए। अभी स्कंदगिरी में इतना बड़ा अच्छा यज्ञ करने के लिए आप संकल्प लिया है। अभी भक्तजनों को आपका संदेश क्या है? हम लोग तो यही कहेंगे कि अन्याय मिटे शुभ कर्म बढ़े, प्रभु तेरा एक सहारा है, सब सुखी रहे हो राम राज्य, बस यही हमारा नारा है। स्वामी करपात्री जी महाराज बोलते थे, हम अपने गुरु जी से ये बात सुने हैं, इसी को हम आगे भी बताना चाहते हैं।
ओके, धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद. जी मेरा सौभाग्य है कि आपका ఇంటర్వ్యూ ले लिया. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సో చూసారు కదా, ఇది స్వామి అభిషేక్ బ్రహ్మచారి గారి సందేశము రాజకీయాల గురించి, అదేవిధంగా సమాజంలోని ప్రస్తుత పరిస్థితుల గురించి అండ్ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అంశాలకు సంబంధించి సమగ్రమైనటువంటి అవగాహన, అధ్యయనము చేసినటువంటి ఇట్లాంటి సాధు సంతుల దిశానిర్దేశం ఈ సమాజానికి అవసరం. అండ్ ఇప్పుడు మన స్కందగిరి టెంపుల్లో ఇప్పుడు 11వ తేదీ నుంచి 13వ తేదీ మధ్య అద్భుతమైన పూజా కార్యక్రమాలు జరగబోతున్నాయి. అండ్ ఈ ఆధ్యాత్మిక వేడుకలో పాల్గొందాము. అండ్ స్వామీజీ ఇచ్చే సందేశాన్ని మనము తీసుకుని ఆకళింపు చేసుకొని వారి ఇచ్చిన ఆ మార్గదర్శనంతో ముందుకు సాగుదాము. చూస్తూనే ఉండండి నేషనల్ స్టాప్, మనసా వాచా కర్మణ, దేశహితం కోసం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి. అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనల్ స్టాప్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.